नमः पार्वती पते हर हर महादेव। उसको पता नहीं था, मैंने गलत बोला, साफ हो गया ना। हाँ, तो बोलेगा तो और बढ़ेगा बात। सही बोला मैडम, बोलेगा तो और बढ़ेगा। ओ मैं क्या आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा तो रहता मस्ती में। बोले की परात पार्वती की टोली, बोले की टोली बोले बोले की बोली, माल की बीड़ी सस्ती है, आजा बैठ जा कश्ती में। दिल है ये जोर नहीं है, मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूं, आशिक है ये चोर नहीं है, मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूं, ये दिल। So hey buddies, this is your Mukul Shah and currently I am on Tungnath track. So you can see behind me, this is a track of Tungnath. So basically we came from this way and behind me there is a Him Parvat and there is a Chandrashila. So you know what is the good thing? I think in my whole bloodline I am the first person who is heading this track. मेरी पूरी फैमिली में नहीं आया होगा कोई, फैमिली में क्या रिलेटिव्स में नहीं आया होगा. So this is not my ego, but you know it's a certain kind of feeling. You feel good when you are the only person who is on the track where तुम्हारी फैमिली से कोई नहीं आया होता. So I am enjoying that feeling right now. And one more thing, you know. Hey buddies, so currently हम हैं ओकीमठ में. हमारे पीछे अगर हम 4 किलोमीटर जाएंगे तो आएगा ओंकारेश्वर मंदिर, और अगर हम इस साइड जाएंगे तो इस साइड आएगा तुंगनाथ चौपटा. सो इस समय हम कंफ्यूज है कि कहाँ जाए हम. और अगर हम ऊपर जाएंगे 500 मीटर तो आएगा उटीमठ. विधायक किसी विधायक की शादी है तो पूरा जाम बाम लग रखा है. किसी रैंडम शहर की रैंडम रोड पे रैंडम लड़के घूम रहे हैं, कोई रैंडम से टैक्सी स्टैंड को ढूंढने के लिए, जिसमें बैठ के किसी रैंडम जगह पे जाना है. ऊकीमठ आ गया गाइस फाइनली. ठंड तो काफी है यहाँ पे. लेयरिंग कर रखी है, अंदर से स्वेटर डाल रखी है, ऊपर से मोटी जैकेट आर्मी वाली डाल रखी है, और हमारे खाने से भी धुआं निकल रहा है और मुंह से भी धुआं निकाल. दिखाना नेम से धुआं निकालने का. Hey name bro. Sup? Hi. So on the way to Tungnath and right now हम रुके हैं अभी एक ढाबे में. पहुंचने ही वाले हैं हम, और हमारे पराठे आ गए हैं, गरम गरम पराठे. Let's have some paratha guys. Let's have some paratha. Then we will continue with our room. So see you guys. Bye. You can see the performance of chips packets. From there you can get an idea how high we are on the mountains. Hey guys, this is your Mukul Shah and this is our brother from Hyderabad. Not yet. Another mother. But You're doing dudes. we just met him. We just met him in a bus and now we are staying in the same room. We 3 people. We're rolling. We're fucking rolling. And we are I just going to, lost my speaker. we are going to start our trek at this morning, approximately at 3 a.m. So we will see the sunrise from the top of the Tungnath. And some crazy shits happened few minutes ago. Let me show you. So this is our bathroom and we are going in bathroom. So we have a charging point here. मैं मत लगाइए वो स्पीकर को. And this is the speaker. So what Nian did, उसने स्पीकर को चार्ज लगा के यहाँ पे रखा and वो पीछे गिर गया. अब वो पीछे गिरा तो इसके पीछे एक पहाड़ है
और पहाड़ के बीच में एक गैप है, और उस गैप के बीच में 2 टीन्स है, उस टीन के अंदर स्पीकर फंसा हुआ है। तो मैं गया और उसने पहले खड्डा खोदा, खड्डे में स्पीकर गिरा, फिर स्पीकर में इसने खड्डे में हाथ डाला और फिर इसने निकाला। आई डोंट नो तुम समझ पा रहे हो कि नहीं, बट किसी दिन तुम्हें लाइव आके समझाऊंगा मैं। It was crazy shit, man. Hey guys, this is your Mukul Shah, and it's our second day of trek, and it's approximately 4 a.m. 4 a.m. or 3 a.m. 3:30 a.m. 3:30, 3:20 exact. 3:20 exact, and we are going to start our trek to Tungnath, and the weather is pretty cool. I'm wearing 3 jackets. First is this, and second one is army jacket, and then a sweater, and then layering as well. So this is Nayan. He's getting ready for his trip, and that is our brother, and he's already ready. We all set. We have 6. Take We one got last some thing. 6 as well. You got your goggles, phone. So let's go. See you on track, man. Let's go. निर्विकारा ओमकारा अविनाशी तुम ही देवादिदेव Hello, Shambhu. जगतपति अनुरक्त भक्ति सदैव। ओम यस्याग्रे ड्राट ड्राट डुट डुट ममलम टंट टंट टंटम तैलम तैलम तु तैलम कुकु कुकु कुकुमम खंक खंक खंकम। ओम डंसम डुडंसम डुहि चकितम भूपकम भूयनालम। ध्यायस्ये विप्रगाहे सरस्वती सवल पातु वः चंद्रचूड़। ओम श्री आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबर। कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकारा ओमकारा अविनाशी तुम ही देवादिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिव सत्या सुंदरा। निरंकारा स्वरूपा कालेश्वर योगेश्वरा। ज्ञानी दीदानीश्वर जटाधारी अभ्यंकरा। शूलपानी त्रिशूलधारी गौरी बागंबरी। जय महिषी त्रिलोचना विश्वनाथ शंभरा। मेरा पैर अभी खाई में बढ़ते बढ़ते हो जा। ये एक जगह थी जिसने मेरे को बचा लिया, वरना मैं वहाँ होता नीचे। छोटा सा स्टाफ था जिसने मेरे को बचा लिया। इट्स ऑल अबाउट बोले, मे बी इट्स मेंट टू बी। नथिंग इज कोइंसिडेंस, एवरीथिंग इज मेंट टू बी। मुक्तम। सी यू गाइस। हर हर महादेव। So we are on the track, and we are doing track in the light of stars, and when we will reach on the top we will see sunrise, and then we will go to the Chandrashila in the light of sun. Har Har Mahadev. So hey buddies, this is your Mukul Shah, and टुंगनाथ से मैं कुछ दूर हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर, और हमारे सारे साथी पीछे छूट चुके हैं। सुबह के 5:20 हो गए हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 6 बजे सनराइज़ होगा। तो मेरे को सनराइज़ देखना था, इसलिए मैं आगे आ गया, बाकी सब पीछे। और आई कांट टेल यू व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। इट्स जस्ट अमेजिंग। ठंडी हवा चल रही है, एंड मेरे हाथ सुन्न हो चुके हैं बिकॉज आई डोंट हैव ग्लव्स। आई एम नॉट कैरिंग ग्लव्स, बट दैट्स फाइन। आई एम नॉट सफरिंग, आई एम enjoying एक्चुअली, मे बी बिकॉज ऑफ भोलेनाथ। एंड इस समय यहाँ पे टेम्परेचर में भी बहुत कम है, इसलिए बैटरी एकदम से नीचे जा रही है। ठंडी जगहों पे बैटरी एकदम से नीचे जाती है, बट इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस। और यहाँ से तारे दिख रहे ऊपर। आई डोंट नो आपको दिख रहे होंगे कि नहीं, बट मेरे को बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। आई एम इवन एबल टू सी सैटेलाइट्स। आपने देखा होगा, टूटते तारे जैसी लगती है सैटेलाइट, वो चलता हुआ तारा होती है एक। सो सी यू ऑन चंद्रशिला और ऑन टुंगनाथ। बाय बाय। हर हर महादेव बम्बो। सो फाइनली वी आर ऑन चंद्रशिला। तो बडीज फाइनली हम हैं चंद्रशिला में, और सनराइज हो चुका है, और ठंड अभी भी बहुत है। हालांकि सनराइज से पहले ज़्यादा ठंड थी, लेकिन अभी थोड़ा सा फर्क है, इतना नहीं है।
होंठ पड़ चुके हैं और तुंगनाथ से भी हम 2 घंटे का ट्रैक करके ऊपर आए हैं। तो तुंगनाथ टोटल है समुद्र तट से 12,000 फीट की ऊंचाई पे। तो सोच लो कि ये कितना होगा। और तुंगनाथ की एक खास बात और है कि इट्स हाईएस्ट शिवा टेम्पल अक्रॉस द वर्ल्ड। सो हम उससे भी ऊपर आए हैं, तो आप सोच ही सकते होंगे। और थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन की कमी भी है यहाँ पे। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, ट्रैक करने में दिक्कत हो रही थी। कुछ लोग पहुंच पाए, कुछ लोग रास्ते से चले गए, कुछ लोग अभी भी ट्राई कर रहे हैं ऊपर पहुंचने का। बट इन द एंड हम पहुंच चुके हैं। और सनराइज बहुत अच्छा था यार, मजा आ गया। मेरे पीछे का व्यू आप देख सकते हो। आई थिंक ये कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो मैं देख पा रहा हूँ वो इससे भी ज्यादा है। आई विल ट्राई कि मैं तुम्हें भी ये सब दिखाऊं, बट यू नो फाइनली राइट नाउ आई वांट टू एंजॉय द मोमेंट। आई डोंट वांट टू रिकॉर्ड इट, बट स्टिल आई एम टेकिंग अ फ्यू शॉट्स फॉर यू गाइस। एंड हमारे साथ एक गद्दी कुत्ता आया था, वो पता नहीं कहाँ गया। वो उससे मिलाऊंगा, बड़ा ही प्यारा था यार वो। When you start recording, you stop enjoying. You can't enjoy when you record. तो दो ही चीजें हो सकती है, या तो रिकॉर्ड कर लो या तो मोमेंट को एंजॉय कर लो। तो आई प्रेफर टू एंजॉय। अब थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर लेता हूँ बीच में टाइम निकाल के, बट पहले मैं चीज को देखता हूँ, एंजॉय करता हूँ। जब पूरा एंजॉय हो जाता है उसके बाद आई स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तुम्हें थोड़ी सी चंद्रशिला की स्टोरी बता देता हूँ। तो रामायण के युद्ध के बाद त्रेता में जब भगवान राम ने रावण का युद्ध किया था, तो उनका ऐसा मानना था कि उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे तप किया था चंद्रशिला पे, और तब से ये चंद्रशिला के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है। आई विल ट्राई टू शो इट यू एज वेल। Room, we come to explore, we come on tracks. It's obvious that we need to spend some money, but if we think in long term, after 2-3 years we gonna forget how much we have spent on the trip, but the memories and the experience we gain, that's going to stay with us forever, my brother. So I just request you that don't be at your homes. Just come, निकल आया करो कभी कभी अपने काम से समय निकाल के घूमने फिरने के लिए। And I don't know मैं ये ब्लॉग कहीं डालूंगा कभी कि नहीं,
एक बार मैं घर जाऊंगा और इसको रिव्यू करूंगा, और अगर मेरे को अच्छा लगा तो मैं डालूंगा, अदरवाइज इट विल स्टे विथ मी, इट्स माय मेमोरीज। एंड सांस फूल रही है मेरी थोड़ी ना, क्योंकि 12,000 फीट की ऊंचाई पे है तुंगनाथ, एंड हम तुंगनाथ से भी ऊपर आ रखे हैं चंद्रशिला पे। तो पेड़ पौधे तो यहाँ पे है नहीं कोई, तो ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी तो यहाँ पे है। और अब मैं तुम्हें थोड़ी देर में रूट दिखाऊंगा जिस रूट से हमें वापस जाना है, मैं अटैच कर दूंगा वीडियो में। और तुम्हें एक कहानी सुनाऊं छोटी सी। एक ना डोडो नाम का पक्षी होता था, तो वो एक शिकारी पक्षी था, और यू नो ही यूज्ड टू हंट एंड he used to eat them, but they used to migrate one place to another. So एक बार जब सर्दियाँ आ जाती थी तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। तो एक बार वो उड़ते उड़ते जा रहे थे और उनको ना रास्ते में एक आइलैंड मिलता है। सो दे गो ऑन दैट आइलैंड, वो आइलैंड पे जाते हैं और कुछ रेस्ट करते हैं, और वो आइलैंड दे फील्स लाइक हेवन, बिकॉज वहाँ पे कोई शिकारी जानवर नहीं था और वहाँ पे खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। तो वो सिर्फ खाते थे, पीते थे, सोते थे। तो बेसिकली वो पक्षी कंफर्ट जोन में आ गए, एंड आफ्टर सम टाइम उन्होंने अपने उड़ने की क्षमता भी खोल दी, और सर्वाइवल की जो क्षमता होती है उनसे, वो भी उनसे छिन गई। एंड इन द एंड वहाँ पे इंसान आ गए, और इंसान अपने साथ लाए जंगली कुत्ते, शिकारी कुत्ते। तो आखिरकार हुआ क्या कि वो जो डोडो पक्षी था, उड़ने की क्षमता तो खो ही चुका था, वो इन द एंड ख़त्म हो गया। तो व्हाट इज़ द मोरल बिहाइंड दिस स्टोरी? डोंट बी इन योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलो, तभी आपके अंदर नई चीज़ें डेवलप होगी, नया कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। वरना कंफर्ट जोन तो ख़त्म कर देगा तुम्हें। तो कभी कभी आ जाया करो पहाड़ों पे, थोड़ा ठंड का एक्सपीरियंस कर लिया करो, थोड़ा ट्रैक का एक्सपीरियंस कर लिया करो। Hey buddies, this is Mukul Shah and this is Nayan. So एक स्टोरी आई थी मन में, तो आई थॉट आई शुड शेयर विद यू। तो एक बार ना महाभारत के टाइम पर कृष्ण और जो अर्जुन थे वो जा रहे थे कहीं पे रथ पे, एक नगर से दूसरी नगर की ओर जा रहे थे भ्रमण पे। तो अर्जुन को एक भिखारी दिखता है रास्ते में। अब इसमें हम थोड़ा डीप नहीं जाएंगे कि उस टाइम पे भिखारी होते थे कि नहीं थे, जस्ट फोकस ऑन द मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो अर्जुन को एक भिखारी दिखता है वहाँ पे। तो अर्जुन क्या करता है, अर्जुन राजा आदमी था, उसने उसको 2 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। तो उसको स्वर्ण मुद्राएं मिल गई तो वो बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। तो वो लेके जा रहा था रोड़ा डालते डालते कि स्वर्ण मुद्राएं मिल गई, स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। तो रास्ते में क्या होता है कि एक डाकू उसको लूट लेता है, उसको डाकू लूट लेता है। 2 ही स्वर्ण मुद्राएं थी, वो भी चली गई। तो फिर गरीब हो जाता है। कुछ दिन बाद कृष्ण और अर्जुन फिर भ्रमण पे जा रहे होते हैं। तो उसको फिर वो मिलते हैं, वही भिखारी उनको फिर दिखता है, कृष्ण और अर्जुन को। तो अर्जुन उससे पूछता है, भाई मैंने तेरे को स्वर्ण मुद्राएं दी थी, तू अब भी क्यों मार रहा है, अब तो तू अमीर हो गया। तो उसने अपनी सारी स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे मेरे को स्वर्ण मुद्राएं मिली थी और मेरे को डाकू ने लूट लिया। तो इस बार अर्जुन ने क्या किया, उसको ना एक रत्न दे दिया, हीरा, जो बहुत ही कीमती था। तो वो फिर खुश हो गया। इस बार तो हीरा मिला उसको जिसकी कीमत स्वर्ण मुद्राओं से भी ज़्यादा है। तो वो हीरा लेके जा रहा होता है, रास्ते में एक पुल आता है। तो पुल से वो जा रहा होता है और उससे वो हीरा नदी में गिर जाता है, और नदी में उसको एक मछली खा लेती है, और वो मछली वहाँ से चली जाती है, और वो फिर गरीब हो जाता है। कुछ दिन बाद कृष्ण और सुदामा फिर भ्रमण पे निकलते हैं। वो भिखारी फिर भीख मांग रहा होता है
कृष्ण और सुदामा नहीं, कृष्ण और अर्जुन, सॉरी। तो अर्जुन इस बार देखता है, इस बार वो क्रोधित हो जाता है। तो अर्जुन उसको कहता है कि मैं तेरे को जितना मर्जी दे लूँ, तेरे को कभी सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलती, तो फिर भीख मांगना शुरू कर देता है। तो उसने इस बार की स्टोरी बताई, तो इस बार कृष्ण ने अर्जुन को रोक दिया। और कृष्ण ने क्या किया कि कृष्ण ने उसको 2 फूटी कौड़ी दे दी, 2 आने समझ लो आप, 2 आने दे दिए। तो वो 2 आने लेके जा रहा होता है और रास्ते में आता है तो उसको 2 औरतें दिखती है जो मछुआरन औरतें थी, सर पे मछली का टोकरा रख के जा रही होती है वो। और एक मछली ना उनमें बहुत तड़फ रही होती है। तो वो क्या करता है, भिखारी करता है कि 2 आने चलो मेरे पास है, तो इससे मैं ये मछली खरीद के इसको पानी में फेंक देता हूँ फिर से, ताकि ये जीवित हो जाए, क्योंकि ये जीवित ही है, उस तड़फ के मृत्यु होगी तो अच्छा नहीं है। तो वो मछली को खरीद लेता है 2 आने देके और उसको पानी में छोड़ देता है। और जब उसको पानी में छोड़ता है ना, तो वो वही मछली थी जिसने उसका रत्न खा रखा था। तो वो उसको जाते जाते धन्यवाद के तौर पे वो रत्न वापस कर जाती है। और जब उसको रत्न मिलता है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। तो वहीं पे डाकू भी वहीं से गुजर रहा होता है और उसको लगा कि शायद इसने मेरे को पहचान लिया। और आसपास राजा के सिपाही थे, तो वो क्या करता है, उसको चुपचाप वो 2 स्वर्ण मुद्राएं भी वापस दे जाता है। और इस बार जब अर्जुन और वो भ्रमण पे निकलते हैं, तो वो जो भिखारी था वो लोगों को खाना खिला रहा होता है। तो अर्जुन के मन में बड़ी आश्चर्य पैदा होता है कि मैंने इसको स्वर्ण मुद्राएं दी, इसका कुछ नहीं बना, मैंने इसको रत्न दिया, इसका कुछ नहीं बना। कृष्ण तुमने इसको सिर्फ 2 फूटी कुड़ी दी, 2 आना दिया, तो ये मतलब इतना समृद्ध हो गया और ये लोगों को भी भोजन करवा रहा है। तो कृष्ण ने उनसे एक बात की कि तुमने इसको स्वर्ण दिया, इसमें ईगो आ गया, इसने अपने बारे में सोचा, तो उससे वो छिन गया। तुमने इसको रत्न दिया, इसमें फिर ईगो आ गया, फिर इसने अपने बारे में सोचा और फिर इससे वो छिन गया। मैंने इसको 2 कौड़ी दी, इसने वो मछली के बारे में सोचा। जब इसने दूसरों के बारे में सोचना शुरू किया, तब मैंने इसके बारे में सोचा। तो इस कहानी से सीख क्या मिलती है हमें? What is the moral of the story? You should start thinking about others as well. Don't be too mean. मतलब आजकल के युग में पता है क्या है, लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, नार्सिस्ट हैं और अपने बारे में सोचते हैं सिर्फ। कभी कभी थोड़ी काइंडनेस दिखाया करो। जब हम लोगों के बारे में सोचना शुरू करते हैं, जीवों के बारे में सोचना शुरू करते हैं, जैसे हम अपन लोग NGO चला रहे हैं, तो हम उनके बारे में सोच रहे हैं। अपन तो नहीं चलवा रहे, कृष्ण ही हमसे करवा रहे जो करवा रहे। तो जब हम पशुओं के बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, तो भगवान हमारे बारे में सोचते हैं और उस चीज़ का फल आपको मिल जाएगा, आज नहीं तो कल। हम इसको फाड़ने जा रहे हैं। गाइस, कचरा ना फैलाएं, इसको हम साथ में लेके जाएंगे अपने साथ। हाँ, हम अपने बोतल्स भी साथ में लेके जा रहे हैं। हमारे पर्वत हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है? एक भी तिनका नहीं छोड़ेंगे। और जो हमें एक्स्ट्रा सामान मिल रहा है, रैपर्स वेपर्स, उसको भी हम साथ में लेके जा रहे हैं। ट्रू, बिकॉज वी डोंट वांट कि आप भी आओ और आप भी ऐसे ही साफ सुथरे पर्वत देखो। क्योंकि it's our responsibility ना, we are coming to explore, we are coming to for darshan, so it's our responsibility to keep the place clean, keep the place as it was earlier before Yeah. us, even make it better. even make it better, right? Yeah. दीवाना मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना तो कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल। ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल। नीचे को जा रहे हैं और ये हमारी दौलत है, डंडा, सहारा कह लो। सहारों की जरूरत वैसे पड़नी तो चाहिए नहीं, बट कभी कभी अगर मिल रहा हो सहारा तो ले लेना चाहिए। ईगो नहीं दिखाना चाहिए वहाँ पे अपना ना।
And one more thing, yeah. You know, in today's era, like I'm 22 years old and I am doing good in my life. I am earning enough, and I won't say that I'm an extra achiever, but you know, my achievements, for me, I'm satisfied with it. Whatever I had, I'm 22 and I have my bachelor's in my hand, and I explored many places, like almost all the states of country. You know, Kashmir to Kanyakumari. Maybe few are left, and we will do that as well. And we are doing job. We have a stable job, earning good. घर वाले खुश हैं, फैमिली इज़ हैप्पी. और जब मैं अपने आसपास देखता हूँ ना, तो ये 20-22-25 साल के लड़के कर क्या रहे होते हैं, मतलब बच्चे कर क्या रहे होते हैं. कुछ लोग ड्रग्स में डूबे होते हैं, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही होती क्या करना है, कुछ लोग डिप्रेशन में होते हैं, कुछ लोग एंजाइटी फेस कर रहे होते हैं. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग अबाउट देम. मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर उनसे हम अपने आप को कंपेयर करें, सो वी आर डूइंग ग्रेट मैन. वी आर नॉट इनटू ड्रग्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ओनली. My most audience is same age as me, and I'm talking about you guys as well. So we are doing great. We are not into drugs. We are doing job. We have our bachelors in our hand. That doesn't matter even, but still we have a degree, and we are exploring. Our parents are happy with us, and we are not doing anything wrong, anything illegal. And we are enjoying in our life, and we are happy. That's the most important thing. We are happy. You know, ये जो एज होती है 18 से लेके 25 तक की, इस एज में ना हमारे साथ बहुत कुछ हो रहा होता है. Multiple things are going on in our lives, like we have to focus on our career as well. We have to focus on our studies. We want to make our parents proud. We want to earn a good amount of money as well. And we fell in love. We face heartbroken as well. So ये सब तो चलता रहता है. किसी भी चीज़ में कभी ज़्यादा डूबना नहीं चाहिए. Enjoy करते रहो. और चलो इस टॉपिक पे बाद में आएंगे, बाद में बात करूँगा आपसे. Just want to clear that currently I'm single. I used to have one, but now I'm all alone and enjoying my life. Yeah, so I was saying that you know, multiple things are going on in our lives in the age between 18 to 25, and we face heartbrokens. We fell in love. We need to focus on our studies, and there is no room of doubt that we also need to make our career in this stage, and we want to make our parents proud. We want to make a good amount of money. We want to buy a lot of stuff, bikes, cars, and plenty of things. But the thing is that this is our learning phase. You know, 25 साल की उम्र तक, जब तक तुम 25 के हो रहे हो, ये तुम्हारा लर्निंग फेज है. कुछ लोग बहुत जल्दी अचीव कर जाते हैं इसमें भी, इनमें भी, बट योर रेस इज़ नॉट विद देम. योर रेस इज़ विद योर सेल्फ. तुम कल कैसे थे और आज कैसे हो, ये मैटर करता है कि रोज़ तुम थोड़ा थोड़ा बेटरमेंट ला रहे हो इन योर सेल्फ. एंड कभी कभी हमारे डाउन फेस भी आते हैं. कभी कभी we need some love, we need some support. For that, you know, firstly, when we used to be kids, we can share everything with our parents, but now we are not kids anymore. So we try to find love
We try to find love in friends, in girlfriends, in boyfriend, and whatever we say. But we all are on the same path, you know. You are expecting the person who is in front of you, like you are expecting your girlfriend to cheer you up. You are expecting your girlfriend to listen you. You are expecting your boyfriend to listen you. You're expecting your boyfriend to pamper you. But on the same time, he is facing the same issues you are facing. Some people say that and some people don't say that. But it doesn't matter. Problems are एक ही life में. So we need to understand this thing. You know, मोहब्बत एक तरफा नहीं होती. मोहब्बत कह लो, दोस्ती कह लो, जहाँ कुछ भी तुम कह लो, सपोर्ट कह लो, एक तरफा नहीं होता. It's a give and take relation, you know. So if you want कि सामने वाला बंदा तुम्हें रिस्पेक्ट दे, first of all you need to learn how to give respect. Then you will be able to take respect. स्टार्टिंग में तो सबको रिस्पेक्ट दो. अगर कोई नया बंदा मिल रहा है, रिस्पेक्ट देम मैन. डोंट रिस्पेक्ट देम, डोंट डिसरिस्पेक्ट द पर्सन हु इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. बट धीरे धीरे करके तुम खुद ही जज कर लोगे उसको कि वो रिस्पेक्ट के लायक है भी कि नहीं. अगर वो रिस्पेक्ट के लायक हुआ तो कंटिन्यू गिविंग रिस्पेक्ट. बट अगर नहीं है तो जस्ट कट ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम दैट पर्सन. That person shouldn't be part of your life anymore. Getting my point? So hey guys, finally we are at Tungnath Temple. So हम चंद्रशिला से अभी लौट रहे हैं और आप मेरे पीछे देख रहे हो. It's Tungnath Temple. But the issue is right now it's closed. You know, because in few days there are going to be a lot of snow. You know, so much snow and. इन दिनों में जो हमारे भोलेनाथ है, तुंगनाथ जी है, वो नीचे चले जाते हैं ओमकारेश्वर मंदिर में. सो हम वापसी में ओमकारेश्वर मंदिर में उनके दर्शन करते हुए जाएंगे. और एक बात और ख़ास है कि वहाँ पे हमें केदारनाथ जी के भी दर्शन होंगे, क्योंकि केदारनाथ जी भी इस वक्त ओमकारेश्वर मंदिर में ही है. लेट मी शो यू. दिस इज़ अ स्टेयर्स ऑफ तुंगनाथ मंदिर. And you know what's the good thing is, हम जो तुंगनाथ है ना, यहाँ हम शिव के दर्शन करने नहीं आते. एक्चुअली शिव हमें खुद बुलाते हैं उनको गले लगाने के लिए. इसीलिए तो यहाँ पे भगवान शिव के हाथों की पूजा होती है. आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस. एंड वन मोर थिंग, लाइक हम अगर कभी भी कहीं ऐसे धार्मिक स्थल पे आ रहे हैं, कभी केदार चले गए, 5 केदारों में से एक केदार पे हम तुंगनाथ है, या 5 कैलाशों में से एक कैलाश पे चले गए, या 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंगों में हम जा पा रहे हैं, तो इट डजंट मीन दैट वी वांट टू मीट भोले बाबा. एक्चुअली इट्स देयर विश. वो हमसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे आ पा रहे हैं. तो थैंक यू भोलेनाथ हमें बुलाने के लिए. And now I will see you in Omkareshwar Mandir. Bye bye. Everyone there, but I'm still trying to show you the temple. इतनी दूर आए हैं. जय शिव शंभू. So I was saying that we are just in our learning period of life. We are in the age between 18 to 25, so it's our learning period. So one thing we can do in this period, and we should do it, and we need to do it, that we should be spiritual. भगवान का साथ कभी मत छोड़ो भाई. भगवान, अगर तुम भगवान का साथ नहीं छोड़ोगे, भगवान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे. You know, इस एज में बहुत कुछ होगा तुम्हारे साथ. बहुत बार तुम गिरोगे, बहुत बार उठोगे, लेकिन अगर तुम इफ़ यू बी विद गॉड, तुम कभी परमानेंट नहीं गिरोगे. वो कभी ना कभी तुम्हारी हेल्प कर ही देंगे. एंड यू नो, दिस इज कॉल्ड जाप मंत्रा. यू ऑल शुड हैव इट. सो इसको जस्ट हमने ऐसे फिंगर में डाल लेना है. एंड just start chanting name, any name you like, Ram, Shiva, Vaheguru, whatever you want, you can do it.
So you don't believe me, but the results are magical. You will stop overthinking. You will get rid from anxiety, depression, and तुम्हारे काम बनने चालू हो जाएंगे. And कोई आपको ऐसा लगेगा कोई स्पिरिचुअल पावर है ना, वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी. एंड योर स्पिरिचुअल गार्डियन, योर ईस्ट बेसिकली, वो हमेशा रहेंगे तुम्हारी हेल्प करने के लिए. तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, देर इज़ अ फ्यू नेम्स. इट्स कॉल्ड राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्रादिदेवता सर्वाद्या सर्ववंद्या च वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमा गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गांधर्वाराधिका रम्या रुक्मणी परमेश्वरी परात परतरा पूर्णा पूर्णचंद्र विभानना भुक्ति मुक्ति प्रदा देवी भव्यादि विनाशिनी. तो मैं पिछले 4-5 साल से इन नामों को जाप करता आ रहा हूँ. और ये राधिका मैया के प्रिय नाम है. तो इनका नाम जाप करने से एक तो कृष्ण प्रसन्न हो गए तुमसे, तुम्हें कृष्ण भक्ति मिलेगी, ऊपर से तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी. 1 महीना करके देख लो मेरे कहने पे. तुम्हें सिर्फ ये नाम लेने हैं 1 महीने के लिए. एंड जो भी तुम्हारी विश होगी वो कृष्ण मंदिर जाके कृष्ण जी से मांग लेना. ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू फुलफिल इट. एंड देयर इज वन मोर थिंग. राधा कृपा कटाक्ष में सुनता हूँ, जपता भी हूँ, लेकिन उनमें से मेरी फेवरेट लाइन पता कौन सी? मखेश्वरी क्रियेश्वरी सवदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीयेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी विजाधिपति श्री राधिके नमोस्तुते. सो बेसिकली जो राधा कृपा कटाक्ष है ये भोले बाबा ने लिखा था. सो इट्स रिटन बाय भोले बाबा. और अगर मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं तो भोले बाबा भी ब्रज के उपासक है. तो अगर तुम रोज सुबह प्रातःकाल शिव मंदिर जाओगे, और शिव मंदिर में तुमने देखा होगा ना, लोग नंदी के कान में बहुत कुछ बोलते हैं, अपनी इच्छाएं बोलते हैं. लेकिन अगर तुम उनको राधा कृपा कटाक्ष की ये लाइन सुना के आओगे, सो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग. जो भी तुम्हारी इच्छा होगी ना वो अपने आप पूरी हो जाएगी. सो बेसिकली नंदी जी के कान में क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि भोले बाबा जो होते हैं ना वो ध्यान में बैठे रहते हैं मगन, और नंदी जी उनकी सेवा में सामने बैठे रहते हैं. और जब भी भोले बाबा ध्यान से बाहर आते हैं तो जो भी उनके भक्तों ने मनोकामनाएं मांगी होती है, जो भी भोले बाबा को बोलने के लिए कहा होता है, नंदी जी के कान में नंदी जी उनको बोलते हैं. तो भोले बाबा देखते हैं कि जब भी वो ध्यान से आते हैं सब लोग इच्छाएं अपनी इच्छाएं बोलते जाते हैं. तो उस चीज़ को वो मतलब पूरी तो कर देंगे तुम्हारी इच्छाएं, लेकिन उससे वो प्रसन्न नहीं होंगे ना, उससे तो तुम प्रसन्न होगे. लेकिन अगर तुमने राधा कृपा कटाक्ष सुनाया नंदी जी को, जो कि स्वयं भोलेनाथ ने लिखा हुआ है, सो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी हैप्पी. क्योंकि देखो अगर तुम क्या बोलने वाला था मैं, लेट इट बी. सो द थिंग इज दैट तुम अगर जब दुर्गा मैया की भक्ति करते हो ना, जरूरी नहीं इस जन्म में, इन योर प्रीवियस जन्मास एज वेल, तो तुम जब दुर्गा मैया की बहुत ज़्यादा भक्ति कर लेते हो, उनको बहुत ज़्यादा प्रसन्न कर लेते हो, तो वो प्रसन्न होकर तुम्हें शिव भक्ति देते हैं. क्योंकि दुर्गा मैया शिव उपासक है. और जब तुम शिव की भक्ति करते हो ना, बहुत ज़्यादा शिव की भक्ति कर लेते हो और अच्छे काम करते हो, देन वो तुम्हें गिफ्ट में कृष्ण भक्ति देते हैं. जब तुम कृष्ण भक्ति कर लेते हो, कृष्ण जी देखते हैं कि दैट यू आर अ गुड पर्सन नाउ, तो तुम सेवा में भेजने लायक हो, देन तुम्हें राधिका मैया की भक्ति मिलती है. और राधा मैया की भक्ति अंतिम है. इसके बाद सीधे मोक्ष है. इसके बाद तुम सीधे गोलोक धाम जाओगे,
तुम ये जन्म कर्म फल चक्र से मुक्त हो जाओगे। सो मैं जस्ट तुमसे शेयर कर रहा हूँ था कि मैं क्या करता हूँ, मेरी पूजा पद्धति क्या है। तो बेसिकली मैं कर्म कांड में विश्वास नहीं करता इतना। सो देयर आर टोटल 4 योग्स, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग एंड भक्ति योग। तो इन चारों योगों में जो सुप्रीम है ना वो भक्ति योग है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर भक्ति योग एज वेल। और ये चीज़ें मैं ऐसे नहीं बोल रहा। श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया मैंने 2-3 साल, उसके बाद गरुड़ पुराण का अध्ययन किया, उसके बाद अलग अलग पुराण पढ़े मैंने, और उसके बाद मैं जो कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ वो तुम्हें बता रहा हूँ। तो तुंगनाथ में इस समय नीचे उतर रहे हैं धीरे धीरे करके। क्या मज़ा आ रहा है। रात के साय में हमने ट्रैकिंग की और तब ऑक्सीजन की थोड़ी कमी थी, तो जैसे तैसे ट्रैक कर ही लिया। और एक बार भी हम गिरे नहीं, जा कह लो भोले बाबा ने गिरने नहीं दिया हमें, वरना बहुत सारे लोग गिर भी रहे थे। और ये तो कृपा है भोले बाबा की। एंड एक और डीप थॉट आया था दिमाग में। नेचर, आप मेरे पीछे पहाड़ देख रहे होंगे, सब स्टेबल है, कुछ नहीं हिल रहा। अब मैं आपको सामने वाले दिखाऊंगा, ये नयन भाई है, वो सामने वाले पहाड़ है वो भी सब स्टेबल है। ये तो व्यू देखो, कुछ भी हिल नहीं रहा। तो इफ यू वांट स्टेबिलिटी, कम टू नेचर। नेचर विल हेल्प यू टू बी स्टेबल। अगर तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहते, नेचर के पास जाओ, पेड़ों के पास जाओ, पेड़ों से बातें करो, वो सुनते हैं तुम्हारी बातें। कभी जाना उनके पास, उनको हक करना, बहुत अच्छा फील होगा और एक पॉजिटिव एनर्जी देंगे वो तुम्हें, वो लोग ना। पहाड़ों में आओ, पहाड़ों में बैठो, मेडिटेट करो। जिंदगी तो, दुनिया तो भागी हुई है यार इधर से उधर, बट यू नो मेन मजा तो सफर का है। एवरीबॉडी वांट टू achieve the destiny as fast they can, but you know मंजिल तक तो पहुंच ही जाएंगे हम सब, बट अगर सफर का ही मजा नहीं दिया तो फिर फायदा क्या है। एंड बिलीव मी गाइस, सफर ज्यादा खूबसूरत होता है मंजिल से।